Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's article is about yield and its types. Now, the learning objectives of this article are to enable our student to differentiate between the theoretical and actual yield, to understand the reasons for less actual yield as compared to the theoretical yield, to describe the efficiency of the chemical reaction in terms of the percentage yield, and to solve the numerical problems for the determination of percentage yield. Now, what is yield? Yield means amount of product. Yield is of three types. It is theoretical yield, its actual yield, and it is percentage yield. These are the three types of the yield. Now, let's see what is theoretical yield. The amount of product which is calculated from the balanced chemical equation is known as the theoretical yield. जितनी भी अभी तक हमने स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की है लिमिटिंग रिएक्टेंट से या सिंगल रिएक्टेंट से, वो तमाम क्या है, वो पेपर वर्क था जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से किया. वो तमाम यील्ड क्या थी? दैट वाज द थ्योरेटिकल यील्ड. So amount of product which is calculated from the balanced chemical equation is known as theoretical yield. Now consider an example. Now how much ammonia gas is produced from 10,000 kg of nitrogen gas in the Haber process? So in order to solve the numericals, in order to calculate the theoretical yield, first of all we'll calculate the number of moles of nitrogen. So we'll divide the mass of nitrogen gas, that is 10,000 kg, by its molar mass. So it comes out to be 357.14 moles. Now according to the balanced chemical equation, 1 mole of nitrogen gives 2 moles of ammonia gas. So 357.14 moles will give twice of 357.14 moles, that is 714.28 moles. Now the theoretical yield in mass will be calculated by multiplying this number of moles with its molar mass. So 714.28 moles multiplied by 17 gram per mole, it comes out to be 12,142.70 gram is the theoretical yield which is calculated from 10,000 gram of nitrogen stoichiometrically, that is with the help of balanced chemical इक्वेशन. जितना पेपर वर्क किया जाता है, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जाती हैं, उसके नतीजे में हासिल होने वाली यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है. नाउ व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? नाउ amount of product that is obtained as a result of chemical process in the laboratory or industry is known as the actual yield. यानी अगर हम जो है वो वही केमिकल प्रोसेस लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में करते हैं फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट हमें हासिल होगी दैट इज नोन एज द एक्चुअल यील्ड. तो लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल होती है दैट इज एक्चुअल यील्ड. नाउ एक्चुअल यील्ड मे बी इक्वल to the theoretical yield or it may be less as compared to the theoretical yield. Now, those reactions in which actual yield is equal to the theoretical yield are known as the quantitative reaction, and such reactions are used in the chemical analysis. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर हम वाटर की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है इससे कि इसमें 11.11% हाइड्रोजन है, जबकि 88.89% ऑक्सीजन मौजूद है. और अगर हम यही प्रोसेस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से परफॉर्म करते हैं तो हमें यही रेशियो हासिल होती है कि वाटर में 11.11% हाइड्रोजन और 88.89% ऑक्सीजन मौजूद है. यानी
इस एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट के इक्वल है। ऐसे रिएक्शन क्वांटिटेटिव रिएक्शन कहलाते हैं एंड सच रिएक्शंस आर यूज्ड इन द केमिकल एनालिसिस। Whereas in second case, the actual yield may be less as compared to the theoretical yield. Now, in such reactions are those which involve the preparation of organic compound या आमतौर पे इंडस्ट्री में जो प्रिपरेशंस की जाती हैं उसमें आमतौर पर एक्चुअल यील्ड जो है वो कैलकुलेटेड यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो लेस होती है। Now let's see what are the different possible reasons for the less actual yield as compared to the theoretical yield। जो actual yield theoretical yield से अगर कम है तो उसकी जो है वो 4 different possible reason है। First possible reason is the reversibility of the chemical reaction। Many chemical reaction which are utilized for the preparation of different substances in the industry are the reversible। For example, in Haber process, ammonia gas is prepared as result of reversible reaction between the nitrogen and hydrogen। So when nitrogen and hydrogen react to form the ammonia, though some amount of ammonia is converted back into the reactants and therefore the actual yield will become less as compared to the theoretical yield। थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते वक्त हमने जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को वापस रिएक्टेंट में जो है वो या कन्वर्ट नहीं किया। हमने वहां पे प्रोडक्ट की अमाउंट डिक्रीज नहीं की, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से जब ये रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो अमोनिया गैस की जो एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस होगी वो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड अमाउंट से लेस होगी। सो फर्स्ट पॉसिबल रीजन फॉर द लेस एक्चुअल yield as compared to the theoretical yield is the reversibility of the chemical reaction। Now, second possible reason is the occurrence of the side reaction। What are the side reaction? Side reaction are some unwanted reaction which occur due to the presence of an impurity। For example, in Haber process, nitrogen and hydrogen react to form ammonia। सपोज कीजिएगा कि इस रिएक्शन वेसल में कुछ ऑक्सीजन गैस एंटर हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन गैस जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करके वाटर बनाएगी। ये अनवांटेड या साइड रिएक्शन है। ये अनवांटेड या साइड रिएक्शन क्या करेंगे? दे विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब नाइट्रोजन की कुछ अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में यूज हो गई, हाइड्रोजन की कुछ अमाउंट भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में यूज हो गई, तो यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए अब रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज कर जाएगी, जिसके वजह से अब अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस हो जाएगी वो लेस होगी। दैट एक्चुअल यील्ड विल बिकम लेस एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू द occurrence of the side or unwanted reaction। Now, third possible reason is the mechanical loss of the product due to the processes like filtration, distillation, separation by separating funnel, washing, crystallization, etc। अगर जो है वो इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में कोई सब्सटेंस प्रिपेयर हुआ है तो और अगर हमने उसको उस सब्सटेंस को उस रिएक्शन के दूसरे प्रोडक्ट से सेपरेट करना है तो या तो उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जाएगा, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किया जाएगा, या उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाएगा और उसको प्योरीफाई करने के लिए उसकी वॉशिंग भी की जाएगी, या उसकी जो है वो फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए उसकी क्रिस्टलाइजेशन भी की जाएगी। इन तमाम प्रोसेसेस में प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट जो है वो वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड को अगर थ्योरेटिकल यील्ड से कंपेयर किया जाए तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो ज्यादा होगी जबकि एक्चुअल यील्ड कम होगी। सो थर्ड पॉसिबल रीजन इज द मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू द प्रोसेसेस लाइक filtration, distillation, separation by separating funnel, washing,
and the crystallization. Now, fourth possible reason is the inexperienced worker. If these chemical processes are carried out by some inexperienced worker, he may waste some amount of the product and actual yield will become less as compared to the theoretical yield. यानी अगर कोई ये तमाम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसा वर्कर है जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस में प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट जो है वो वेस्ट कर देता है, तो ऐसी सूरत में फाइनली हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी. सो देयर आर फोर possible reason for the less actual yield as compared to the theoretical yield. The first one, reversibility of the chemical reaction. Second, occurrence of the side reaction. Third is the mechanical loss of the products, and fourth is the inexperienced worker. This is very important question, that why actual yield in some chemical reaction is less as compared to the theoretical yield. तो स्टूडेंट्स आपने इसके आंसर में ये 4 पॉइंट्स लिखने होंगे. Now, how can we determine the efficiency of chemical reaction? Efficiency of chemical reaction is determined in terms of its percentage yield. This is the third type of yield. Now, percentage yield is equal to the actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड एक दूसरे के क्लोजर होंगे तो परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी, तो ऐसी सूरत में उस रिएक्शन की एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी. लेकिन अगर एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस ज्यादा होगा तो परसेंटेज यील्ड कम होगी और एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी जो है वो कम होगी. सो वी डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय calculating its percentage yield. Percentage yield is actual yield divided by theoretical yield into 100. Now reconsider the example of the theoretical yield. अभी हमने ये जो theoretical yield में एक numerical जो है के जरिए theoretical yield कैलकुलेट की थी, तो सपोज कीजिएगा कि उस अगर वो प्रोसेस जो है इंडस्ट्री में किया जाए, हैपर प्रोसेस के जरिए अमोनिया गैस की प्रिपरेशन की जाए 10,000 ग्राम नाइट्रोजन गैस से, तो सपोज कीजिएगा कि 11,000 ग्राम यानी 11 किलोग्राम अमोनिया हासिल हुई. तो सपोज की तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने कितनी कैलकुलेट की थी? इट वाज 12.142 किलोग्राम. ये क्या है? दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने स्टोइशियोमेट्रिकली कैलकुलेट की. सपोज कीजिएगा कि ये एक्चुअल यील्ड है, ये हमें हैपर प्रोसेस में अमोनिया की एक्चुअल अमाउंट जो हासिल हुई वो ये है. तो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कीजिए. 11 kg डिवाइड बाय 12.142 kg into 100, it comes out to be 90.6%. तो ये 90.6% ये शो करती है कि रिएक्शन इज हाईली एफिशिएंट. इसमें जो मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो यील्ड की बहुत कम अमाउंट जो है वो वेस्ट हुई है. नाउ लेट्स कंपेयर theoretical and actual yield. It is very important question. Students to differentiate between the theoretical and actual yield. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने पेपर पे 2 कॉलम बना लीजिए. एक तरफ लिखेंगे आप theoretical yield और दूसरी साइड पे actual yield. So what is theoretical yield? The amount of product which is calculated from the balanced chemical equation is known as the theoretical yield, whereas the amount of product which is obtained as a result of chemical process in the laboratory or industry is known as the actual yield. यानी फर्स्ट कंपैरिजन हमने डेफिनेशन का कर लिया. नाउ थ्योरेटिकल यील्ड इज यूजुअली ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड सिवाय क्वांटिटेटिव रिएक्शन के. तो अदरवाइज ये जो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें जो है वो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेस होती है. तो actual yield is usually less as compared to the theoretical yield. A theoretical yield is the paperwork, therefore it doesn't depend upon the experimental condition, whereas actual yield is obtained as a result of actual chemical process, so it will depend upon the experimental condition like temperature, pressure, presence of catalyst, etc.
अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मदद से इस कंसेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, it is C2H5OH. It is prepared by fermentation of glucose according to the following equation. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जब ग्लूकोज में यीस्ट सेल डाले जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है इनटू अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल and carbon dioxide. Now question is that what is the theoretical yield available from the 10 gram of the glucose? And the second part of this numerical problem is that if in a particular reaction 10 gram of glucose produces 0.664 gram of ethanol, what will be the percentage yield? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा कि इस न्यूमेरिकल में या जो यील्ड के किसी भी न्यूमेरिकल में जो प्रोडक्ट की जो अमाउंट दी गई होती है वो कौन सी होगी? एक्चुअल यील्ड होगी। जबकि दूसरे जो क्वांटिटी दी गई होगी वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी। आपने क्या करना है, आपने रिएक्टेंट की क्वांटिटी से प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेनी है। वो क्या हो जाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगी। अब उस थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड की मदद से आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम इज द गिवन मैस। इसको मोलर मैस से हम डिवाइड करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 0.055 मोल्स। एक्चुअल यील्ड जैसे हमने स्टेटमेंट में देखा इट इज 0.664 ग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड देन परसेंटेज यील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 mole of glucose gives 2 moles of ethyl alcohol. So 0.005 moles will give 2 into 0.55 moles, that it will be 0.11 moles of ethyl alcohol. Now the mass of ethyl alcohol can be calculated by multiplying this number of moles with its molar mass. It is equal to 5.06 gram. नाउ थ्योरेटिकल यील्ड, ये अभी जो कैलकुलेट हमने क्या किया है, ये क्या है? इट इज थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड इज 5.06 ग्राम। एक्चुअल यील्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी गई इट इज 0.664 ग्राम। What will be the percentage yield? Actual yield divided by theoretical yield into 100. 0.664 को 5.06 ग्राम से डिवाइड कीजिए, देन 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज 13.12%। ये लो परसेंटेज क्या शो करती है कि दिस रिएक्शन इज नॉट एफिशिएंट या इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कम है। ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं एज असाइनमेंट। सिंपल है, इन तमाम में आपने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। इनमें आप देखिएगा कि एक तो रिएक्टेंट की अमाउंट दी गई होगी और दूसरी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअल यील्ड। आपने क्या करना है, आपने इन तमाम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है और उसके बाद उस थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड की मदद से आपने परसेंटेज यील्ड की कैलकुलेशन करनी होगी। Thank you very much, students.